Good morning, my dear students. Welcome you on my YouTube channel, Kumar Onish English Focus. Students, in today's session, we are about to study a poem from Beehive Book Class 9 CBSE, Wind. Then students, let's talk something about the poem Wind. Actually, when you are going to study a poem, what you have to study? At the very first, I would tell you, as I have mentioned here, first thing you have to know about the title, secondly about the poet, thirdly the summary of the poem, fourth theme of the poem, message of the poem, hard words and important question answers. Students, this is a very beautiful poem. The very first I would tell you about the title, why the poet has selected wind. Actually students, I would tell you कि कविता में कवि वास्तव में क्या कहना चाहता है, यह तो सिर्फ और सिर्फ कवि को चाहता है, परंतु हम टीचर्स कविता को जितना समझ पाते हैं उतना अपने स्टूडेंट्स को बता पाते हैं. स्टूडेंट्स, दिस पोइम इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती बट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड by Ramanujan. Students, thirdly the summary of the whole poem. Actually in this poem the poet talks to the wind. By this poem the poet gives us a message that we must know about the spiritual power, and this poem connects us to God. So students, now hard words. Some hard words are there in the poem. I will mention when I'll teach you line by line, and important question answers I'll tell you in the last of the poem. So students, these are the points which you have to study. तो हमें लग रहा है आपको भरपूर समझ में आ गया होगा. अब आइए कविता की ओर चलते हैं. Let us start from the first line. Wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the book on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. आइए पहले देखते हैं. Wind comes softly. Directly, the poet is talking to the wind, and he is saying to the wind, "Oh wind, come. If you are coming, come. I will not prevent you. मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं. आओ. But how? Softly. विनम्रता के साथ आओ. A second line, don't break the shutters of the windows. एक्चुअली कविता को जब आप आगे पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो हवा है उनको पवन देव के नाम से भी कवि ने संबोधित किया है, तो हमें उनको मस्कुलिन जेंडर में समझना है. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. पवन महाराज आइए. कभी दूसरी पंक्ति में कह रहा है. क्यों वो कह रहा है कि आप धीरे से आओ? क्योंकि जब आप आते हैं तो क्या होता है कि आप शटर्स को तोड़ देते हैं ऑफ द विंडोज. जो खिड़कियों के जो दरवाजे हैं उन्हें आप तोड़ देते हैं.
So he is requesting to the wind, don't break the shutters of the windows. That's why he is saying, come but softly. Third line, don't scatter the papers. ओहो, जब आप आते हो तो जो पेपर्स है वो स्कैटर हो जाता है, बिखर जाता है, आपके प्रभाव से सब अस्त व्यस्त हो जाता है. डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ. ओहो, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ. किताबों को इधर उधर आप न फेंको. आप आते हो, बहुत गड़बड़ हो जाता है. और बुक ऑन द शेल्फ, जो बुक को रखने का जो सामान है उस पर किताबों को आप इधर उधर न करो. देयर लुक व्हाट यू डिड. देखो तो आपने क्या कर दिया. इट मीन्स द पोएट इज कंप्लेनिंग टू द विंड. लुक व्हाट यू डिड. देखो तो आप क्या कर दिए हैं. यू थ्रू देम ऑल डाउन. आप सभी किताबों को, each and every book has been disturbed from their rack. अर्थात आपने सभी किताबों को अस्त व्यस्त कर दिया, इधर उधर कर दिया है. You, next line, you tore the pages of the books. और आपने क्या किया है, आपने ये भी किया है कि you tore, ये टीयर का सेकंड फॉर्म है. दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ टीयर, फाड़ना. आपने फाड़ा है द पेजेस ऑफ द बुक्स. जो किताबों के पेजेस हैं उनको आपने फाड़ा है. यू ब्रॉट रेड अगेन. आपके अंदर ये क्वालिटी भी है जो हम लोगों के लिए नुकसानदायक है. कौन सी क्वालिटी. टू ब्रिंग रेन. आप फिर से वर्षा ला देते हैं. अर्थात you have, the poet is saying to the wind that you have capacity to do all these things, but I pay you regard not to do. I request you, I send you a request not to do as, क्योंकि इससे हम लोगों को परेशानी होती है और एक फीलिंग भी आती है कि हम लोग कमज़ोर हैं. शायद आप आकर के यही हम लोगों को बताते हैं. लेट्स गो टूवर्ड्स अनदर लाइन. यू आर वेरी क्लीवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. अर्थात यू आर वेरी क्लीवर ओ विंड. आप सचमुच में बहुत ही होशियार हैं. क्यों होशियार हैं. एट पोकिंग फन, मजाक बनाने में. मेकिंग फन, पोकिंग फन का मतलब है मेकिंग फन, मजाक बनाने में. एट वीकलिंग्स, कमजोर लोगों का. अर्थात द पोएट इज ऑल्सो सेइंग टू द विंड दैट यू हैव अ मास्टरी. यू हैव अ मास्टरी टू मेक फन टू ऑल द वीक इन पीपल. जितने सारे कमजोर लोग हैं उनको आप ये बता करके कि वो कमज़ोर हैं, आप मजाक उड़ाते हैं. स्टूडेंट्स, अगली पंक्तियों में देखते हैं और कवि महोदय क्या कह रहे हैं. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डूअर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. अर्थात आप नुकसान पहुंचा देते हैं. फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, कमज़ोर घरों को. क्रम्बलिंग डूअर्स, कमज़ोर दरवाज़ों को. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स मतलब छत के ऊपर. आपने देखा होगा कि हम लोग शेड बनाते हैं टीन का, उसे राफ्टर्स कहते हैं. इस प्रकार के जो कोठरियाँ, इस प्रकार की जो कोठरियाँ होती हैं उन्हें आप क्या करते हैं, फ्रेल कर देते हैं. और क्रम्बलिंग वुड, और लकड़ियों को भी आप, कमज़ोर जो लकड़ियाँ होती हैं उन्हें भी आप नुकसान पहुँचाते हो. और क्रम्बलिंग बॉडीज़,
जो कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें भी आप हरास पहुंचाते हो, नुकसान पहुंचाते हो। क्रम्बलिंग लीव्स, कमज़ोर जो जीवन होता है अर्थात किसी भी जीव का जो जीवन है उस पर आप अपना प्रभाव डालते हो। और क्रम्बलिंग हार्ट्स, जो कमज़ोर हृदय वाले हैं उन्हें भी आप डरा देते हो। अगली पंक्तियों में द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। ओ गॉड, इसी पंक्ति में, इन दिस पंक्ति द पोएट इज एड्रेसिंग विंड एज अ गॉड। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। ओ गॉड, रियली ओ पवन देव, आप विनोज हैं, आप ही सदैव जीतने वाले हैं। एंड क्रसेस, और आप कुचल भी देते हैं। देम ऑल, इन सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को आप कुचल करके, मतलब अपने अंडर में इन सभी चीज़ों को आप रखते हैं। इट मीन्स यू हैव पावर टू डू ऑल दीज थिंग्स। लेकिन ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। ही वॉन्ट डू, यहाँ पर जो ही आया है यह पवन देव के लिए आया है। अब पोएट हम लोगों से कह रहा है ही वॉन्ट डू, वो ऐसा नहीं करेंगे व्हाट यू टेल हिम, जो आप उनसे कहोगे। इट मीन्स द पोएट इज बिलीविंग कि वह जो कुछ भी कह रहा है कि पवन देव आप ऐसा न करें, वो कुछ सुनने वाले नहीं हैं। वह तो वही करेंगे जो उनके मन में आएगा। सो कम, अतः आइए, लेट अस बिल्ड। अब ये कम जो है आम जन के लिए है। कवि ने आम जन को संबोधित करते हुए कहा है, शो द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड कम अलॉन्ग विद, और लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। आइए हम सब मिल करके अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट अस ज्वाइन द डूअर्स फर्मली, और उनमें जो दरवाजे हम फिट करें वह बहुत ही दृढ़ता के साथ फिट करें, बहुत मजबूती के साथ फिट करें। और प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और ये भी कोशिश करें कि अपने शरीर को कैसे हम फर्म बनाएं, दृढ़ बनाएं। नाउ द पोएट इज सेइंग इन द लाइन, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, डू दिस एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड टू अस। द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. तो स्टूडेंट्स, इस पंक्ति में कह रहा है कि मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। आइए हम सब मिल करके अपने हृदय को मजबूत बनाएं, दृढ़ बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड टू अस। अगर हम ये सब कार्य कर लेते हैं, अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, अपने घरों को मजबूत बना लेते हैं, देन डेफिनेटली वन डे विंड विल बी अ फ्रेंड ऑफ अस। तो एक दिन यह वायुदेव या जो पवन देव हैं यह हमारे दोस्त अवश्य बन जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। ब्लोज आउट मतलब हटा देना होता है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कमज़ोर आग को ये और भी धधका देती है, आग तेज कर देती है। कमज़ोर आग को और भी ये तेज कर देते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो अग्नि कमज़ोर होती है उसे और भी यह तीव्र बना देते हैं। ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोअर, और जो ऑलरेडी स्ट्रांग फायर होती है उसको और भी ये तेज करके और उसमें उसको
संजीवनी पिला देते हैं, अर्थात उसको तेज कर देते हैं। एंड फ्लोरिश, और उसको फ्लोरिश करते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इनकी मित्रता बहुत ही अच्छी है। द पोएट इज टेलिंग टू ऑल ऑफ अस, आफ्टर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग by wind, we must accept his friendship. We must try to make him friend. That's why in last two lines the poet is saying his friendship is good. And you know what is friendship? A friendship is very good. इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो कह रहे हैं कि मित्रता उनसे बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अच्छी भी है। अ लास्ट लाइन, वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमें प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अर्थात अंत में आते आते हमें ये पता चलता है कि यह कविता निश्चित रूप से हमें ईश्वरत्व से जोड़ती है, हमें उस दिव्य शक्ति का आभास कराती है, हमें यह बताने का प्रयास करती है कि देयर इज समथिंग, देयर इज सम स्पेशल पावर हु इज ओमनी प्रेजेंट। कुछ तो है जो हर जगह है। इन दिस वे द पोएम इज एंड हियर। एंड स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टैंड कि आपको यह ठीक ठीक समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट करके बताएं, और जिन चीज़ों की आवश्यकता हो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमारे फ़ोन नंबर पर बातचीत करके पूछ सकते हैं, कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई स्टॉप हियर। थैंक्स टू ऑल माय क्लास 9th स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।